And because of this pullout, the equity markets fall. The pullout that has happened in the Indian equity markets is huge in the last 6-8 months. Why do FIIs and foreign investors and foreign portfolio investors pull out from the Indian equity markets when interest rates in US go up? Hi, good morning. Welcome back to another episode of School of Thought. We're still at Pangong Lake, pretty near now to Pangong Lake. So, but just a side note, beautiful lake, beautiful location. But coming back to School of Thought, so the existing volatility which is going on in the market because of interest rate hikes across the global economies, as well as the Ukraine-Russia crisis due to which the crude oil prices have gone up. So I just wanted to decode or simplify why rate hikes impact your equity investments. So whenever a rate hike happens in any economy, right, be it India, be it US, a rate hike means the interest payments of companies which are listed on stock exchange, the interest payment increases, hence their profitability decreases. And as you know, the stock prices are it is a direct correlation between stock prices as well as the profitability of a company. So if a company is expected to be less profitable, automatically the stock prices will fall in accordance with that expectation. Another thing that happens is if an interest rate increases in an economy like US, the FIIs, the foreign investors who have invested in emerging markets like India, they start pulling out. Now, why do they start pulling out? So, why do FIIs and foreign investors and foreign portfolio investors pull out from the Indian equity markets when interest rates in US go up? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. US में जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था, US में इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप होके 0 से 0.25% के बीच में हो गए थे. अब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई यूएस का इन्वेस्टर है, अगर उसको यूएस में इन्वेस्ट करना है तो उसको 0.25 या 0.15% रेट मिलेगा ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स. और यही अगर वो उस टाइम इंडिया में इन्वेस्ट करता, इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स थे कुछ 4-4.5 के आसपास और बॉन्ड यील्ड्स थी कुछ 6% के आसपास. तो अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करता उसको 6% का रेट मिलता. बट इसमें एक हेजिंग कॉस्ट भी होती है. हेजिंग कॉस्ट क्या होता है? अगर फॉरेन इन्वेस्टर है उसको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो अब उसको दो रिस्क आ सकते हैं. एक तो इंडियन इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा रुपी डेप्रिसिएशन. अगर रुपी यूएस के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होता है तो एक हेजिंग कॉस्ट होती है जो ये करेंसी कन्वर्जन का रिस्क हटा देती है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए. वो होती है कुछ लगभग 4%. तो 4% का अगर हम एक कॉस्ट माने फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फॉरेन इन्वेस्टर को फिर भी 2% ऊपर मिलता था as compared to his investments in US, right? अब क्या हुआ? जब US में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो गए, US की बॉन्ड यील्ड्स पहुंच गई 3%, इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स है कुछ अभी के आसपास 7.25-7.5 के बीच में. तो 3% बॉन्ड यील्ड्स पे अगर आप 4% हेजिंग कॉस्ट लगाएंगे तो आपका कुछ 7% के आसपास बैठता है. तो इंडिया में इन्वेस्ट करने का कोई पर्क, कोई बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर को. और फॉरेन इन्वेस्टर को ये लगता है कि 0.25 के लिए मैं इंडिया में या इमर्जिंग मार्केट्स में क्यों इन्वेस्ट करूं, जबकि मुझे खुद अपने यूएस मार्केट्स में उतना रेट मिल रहा है. तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इमर्जिंग मार्केट्स, नॉट जस्ट इंडिया, एनी इमर्जिंग मार्केट्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्ट पुलिंग आउट देयर मनी, एंड बिकॉज ऑफ दिस पुल आउट द equity markets fall. The pullout that has happened in the Indian equity markets is huge in the last 6-8 months. But Indian markets as compared to the FII pullout has not corrected that much. It has corrected but not that much because जो हमारे domestic investor है वो पैसा लगा रहे हैं equity markets में इस point of time पे. छोटा सा नंबर देता हूँ आपको. फॉरेन इन्वेस्टर हर रोज़ कुछ 3,000 करोड़ निकाल रहा है इंडियन मार्केट से, और वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर 2,500 करोड़ रोज़ लगा रहा है इंडियन मार्केट्स में. सो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी हुई होगी कि इंटरेस्ट रेट हाइक से इक्विटी मार्केट्स क्यों नीचे जाती है वर्ल्ड ओवर और स्पेसिफिकली इंडिया में. बट आई होप आपको ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स और आपकी इक्विटी मार्केट करेक्शन का कोरिलेशन समझ आया होगा. और अगर आपकी लाइफ में मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बताइए हमें किस किस टॉपिक्स पे हम वीडियो शेयर करें.
Thank you so much. Cheers.